The question based on waves is speed of transverse wave in a string of density 100 kg per meter cube and area of cross section 10 millimeter square under a tension of 10 raised power 3 Newton is, and four options are given to you. A option is 100 meter per second, B option is 1000 meter per second, C option is 200 meter per second, and D option is 2000 meter per second. Now as per statement, the density is given to 100 kg per meter cube. Cross sectional area of string is 10 millimeter square. This cross sectional area is this one. It is the cross sectional area A, and tension is given to you. Then you required the velocity of transverse wave in this string. The velocity you know very well. Velocity of transverse wave in string is equal to under root T by mu. V is equal to under root T by mu. T is given to you here, but mu is not given to you. Mu आपको नहीं दे रखा है. Mu आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. Here mu is equal to mass per unit length. Mass is volume into density upon length is L. Volume is AL into density upon L, and it comes out to be A into rho. तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया है म्यू को, तो म्यू की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. तो v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू. म्यू इज a इंटू रो. तो v इज इक्वल टू अंडर रूट टी. टी इज गिवन टू यू, इट इज 10 raised power 3. a इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज गिवन टू 10 raised power -5 हो जाएगा एडजस्ट करके, इंटू रो. डेंसिटी इज गिवन टू यू 100, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 1000 meter per second. In this way, B option is the correct option. Next question is, the speed of sound wave in a gas is V1 and RMS speed of molecule of gas at the same temperature is V2. Then first option is V1 is equal to V2, second option is V1 is less than V2, third option is V1 is greater than V2, and fourth option is V1 is less than equal to V2. It is here in this problem, V1 is the speed of sound in gas and RMS speed of gas molecule is V2. To proceed this question, we know very well V1, the velocity of sound in gas, V1 is equal to under root of gamma P by rho, and if you solve this P by rho, we know very well PV is equal to RT, P volume is equal to mass upon density, P upon rho is equal to RT, we know very well. So P upon rho become here RT by M. In this way, it become here gamma RT by M. It is the V1, and V2 is the RMS speed of gas molecule at given temperature, same temperature at which V1 is considered. V2 that we having result here 3 RT by M. ये आपके पास V2 आ गया, आपके पास V1 आ गया. हम ये जानते हैं कि जो गामा की वैल्यू होती है किसी गैस के लिए, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, ये वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इज ग्रेटर देन 1, बट इट इज लेस देन 3 से कम होती है. इसका मतलब ये होगा कि जो V2 होगा will be greater than V1. V2 stand that the RMS speed of gas molecule वो given temperature पे ज्यादा होगी as compared to speed of sound in that gas. Next question is, the equation of a traveling wave is given as y is equal to 5 sin 10 pi t minus 0.01 x along the x-axis. Here all quantities are in SI system. The phase difference between the points separated by a distance of 10 meter along x-axis is, and option are, first option is pi by 2, B is pi, third option is 2 pi, and D option is pi by 4. This equation is given to you, y is equal to 5 sin 10 pi t minus 0.01 into x. इसको अगर हम ओपन कर लेते हैं, it become here 10 pi, यहाँ इसके अंदर आ जाएगा, it become here 10 pi t minus it become here 0.1 pi into x. ये गिवन इक्वेशन हमारे पास है. आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है y is equal to a sin ओमेगा t minus kx. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब यहाँ पे कंपेयर करके हम एक बार वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ऑन कंपेयरिंग वी गेटिंग इट हियर ओमेगा इज इक्वल टू 10 pi and k is equal to 0.1 pi. अब k आपको 0.1 pi आपको नोन हो गया है. k की वैल्यू कितनी होती है 2 pi by lambda is equal to 0.1 pi. pi से pi यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा. Therefore lambda become here 2 upon 0.1 and that comes out to be 20 meter. ये आपको वेवलेंथ निकल गया. आपको निकालना है फेज डिफरेंस डेल्टा phi is equal to how much if this path difference is given to you 10 meter. ये प्रॉब्लम में आपको गिवन है.
डिफरेंस कितना है हमारे पास 10 मीटर है, तो फेज डिफरेंस कितना होगा उन पॉइंट्स के बीच का। ये क्वेश्चन आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आपका आंसर होता है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये इंटरफेरेंस में यूज होता है रिजल्ट हमारा। इट इज हियर 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज गिवन टू यू 20 एंड डेल्टा एक्स इज गिवन टू यू इट इज 10। इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी पाई हियर। इन दिस वे योर आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज f, but when the weight producing the tension are completely immersed in water, the frequency become f by 2, and on immersing the weight in a certain liquid, the frequency becomes f by 3. The specific gravity of liquid is, A option is 4 by 3, B option is 16 by 9, C option is 15 by 12. In this problem, it is given to you the frequency of sonometer wire is f. This one. अभी इस वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है वाइब्रेशंस की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, फॉर्मूला हमारा होता है इट इज हियर 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन टी, और जो टी होता है यू नो वेरी वेल 1/2L अंडर रूट टी इज हियर mg। जो टेंशन जनरेट हुई है वो टेंशन किसने दिया है, इस वेट mg ने दिया है, mg बाई म्यू इज हियर। इन दिस वे हम देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडिंग ऑन दिस g। इन दिस वे द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g हियर। ये आपने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में पूछता है वो कि आपने अब इस वेट को वाटर में डिप कर दिया, जो वेट हमारे पास है ये वाला, आपने इसको वाटर में डिप कर दिया यहाँ पे। तो वाटर में डिप करने के बाद अब टेंशन चेंज हो जाएगी। टेंशन चेंज क्यों हो जाएगी, आप बात समझ गए हैं, क्योंकि वेट डाउनवर्ड काम करेगा mg और इस पे एक अपथ्रस्ट लगेगा, उसकी वजह से टेंशन चेंज हो जाएगी। और टेंशन चेंज होने की वजह से उसने गिवन है क्वेश्चन में द फ्रीक्वेंसी बिकम f by 2। इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, f by 2। इसमें कितनी थी, f थी, तो यही रिजल्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा f by 2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g डैश। इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसी रिजल्ट को चेक कर लें तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बन जाएगी यहाँ से जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं वो ये हो जाएगा कि इट इज हियर 1/2 हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपका f by 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by g डैश। इट बिकम हियर 2 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g by g डैश एंड देयरफॉर g by g डैश बिकम इक्वल टू 4। इन दिस वे g डैश by g बिकम इक्वल टू 1/4। यहाँ मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि किसी मीडियम में जब हम किसी बॉडी को इमर्स्ड कर देते हैं तो वहां पे बायंसी लगने की वजह से जो ग्रेविटी का रिजल्ट आता है g डैश by g बिकम हियर रो माइनस सिग्मा। रो माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ पे वाटर है, जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं, मीडियम क्या है यहाँ पे वाटर है, अपॉन रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, जो बॉडी हम यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी रो है। ये रिजल्ट हमारे पास होता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन डेंसिटी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे g डैश बाय g की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है तो ये वैल्यू रो माइनस सिग्मा ऑफ वाटर, क्योंकि मीडियम हमारे पास वाटर है, अपॉन रो इज इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 4 रो माइनस 4 सिग्मा ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो। इसको हम चेक कर लेंगे तो 4 सिग्मा ऑफ वाटर बिकम हियर 3 रो। तो यहाँ से हम रो को रिप्लेस कर सकते हैं, ये बन जाएगा 4/3 सिग्मा ऑफ वाटर। ये वाटर की डेंसिटी और जो बॉडी हमारे पास है, जो ब्लॉक हमारे पास है, उसकी डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन आ गया है। नाउ हियर इन थर्ड कंडीशन इट इज गिवन टू यू, नाउ द सेम ब्लॉक इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कोई लिक्विड हमारे पास है, अननोन लिक्विड हमारे पास है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मैंने अज्यूम कर दिया सिग्मा एल। सिग्मा एल इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जो मैंने कंसीडर किया है। इस ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, रो है। आपको प्रॉब्लम में गिवन है नाउ द फ्रीक्वेंसी बिकम f/3। फ्रीक्वेंसी f/3 हो गई है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी f/3 इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल 1/2L अंडर रूट t बाई म्यू। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और t टेंशन कितना होता है, mg होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ कि f/3 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t एंड t इज हियर अंडर रूट ऑफ mg, मींस इट बिकम हियर f/3 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ
जी, लेकिन यहाँ पर जी चेंज हो गया, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, जी डबल डैश लिख दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसको कंपेयर कर दीजिए 1 के साथ, तो 1 के साथ कंपेयर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 इज हियर, इक्वेशन 1 आपके पास है f इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट जी, ये 1 इक्वेशन है, आप इसको कंपेयर कर दीजिए, अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आप 3/1 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी डबल डैश बाई जी, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1/9 बिकम हियर जी डबल डैश बाई जी। अरे रिजल्ट हम जानते हैं ये कितना होता है, रो माइनस सिग्मा ऑफ लिक्विड अपॉन रो, अरे ये कितना आएगा, इज इक्वल टू 1/9। अब आप यहाँ से कंपेयर करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट बिकम हियर 9 of rho minus 9 of sigma L is equal to rho, and it become here 9 of rho L is equal to 8 of rho, और रो की वैल्यू हमें नोन है, रो इज इक्वल टू आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, 4/3 डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पुट कर लेंगे रो की जगह में, तो 9 रो L इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, and it become here density of liquid upon density of water become 8 4 जा 32 upon 27. In this way the D option is the correct option.